Welcome back to The Scoop Sisters. And we're back after a 1 week break. Yes. We need a detox. We need a detox from all the information that we have consumed from the guest episodes in the past few weeks. We just mutually decided that let's just take a break, sit down, unwind, relax, make a chill episode because it's been a little heavy. Yeah, that's why we have changed the We don't have coffee today, guys. We have nuggets. We have nuggets. This is smileys. Smileys. Smileys are nuggets only. Don't tell this. People will judge you. Nuggets are different thing. Okay? These are nuggets for vegetarian people. It is very unprofessional to eat and talk. You know that. Oh, it's a friendly, it's a homely podcast. Like ज़्यादा professionalism होगा तो कैसे वो homely होगा ना? तो now finally I'm a master student. She's Unemployed. doing job और unemployed. But ऐसा भी कोई वक्त था जब Not too long ago, we were in school too. giving board exams and फट जाती थी हमारी. And this is the time going on for like Board exams board are exams. going on right now. and I think ICSE and CBSE have already started. started. ICSE is on the verge of ending, I guess. ICSE should ideally be in the middle somewhere. Because Somewhere back in the middle or in the in towards it. No, I don't think so towards end because So back ICSE in the did 1 year, month. in the year we appeared, it ended in March. Not yet. And I remember it was 25th of March. Our like 2000. I remember the chemistry. 19 batch. Yeah, the day we were having chemistry exam, it was holy. Maybe the last exam was biology. Biology. I remember. उसमें मेरा एलर्जी हो गया था. मैं जा रही थी एग्जाम देने वक्त तो मेरा डस्ट एलर्जी है. तो इतना धूल. So I remember the last exam. मैं For a पूरे different एग्जाम हॉल में मैं एग्जाम देती. अरे रूम में like क्या कर रही है ये? No, back in school, I think I did not really have a lot of, especially board के time पे I remember. So मेरे school में क्या था कि like हमारा पूरा basically there was this second floor and classrooms were divided by wooden partitions. ठीक है? There were like 6-7 rooms in that entire floor. And it was specifically created क्योंकि हमारा like home center था. We did not have to relocate to different. You guys had to. We didn't have a home center क्योंकि हमारे पहले कुछ सीनियर्स ने ऐसा चीटिंग किया था कि हमारा होम सेंटर गायब हो गया. No, I was lucky enough to have home center for both my ICSE like +2 as well as 10. But I yeah, think, people if my school friends are watching this, they can relate कि हमने इतना गालियाँ दी थी हमारे सीनियर्स को. इतना चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? थोड़ा बहुत कर लेते. लेकिन बुक स्कूल के कौन लिखता है? हाँ. how is that possible? Like we had very strict invigilation. Because मतलब घर में रिविजन हो तो like invigilators external नहीं थे? वहीं से तो कंप्लेन गया था ना बोर्ड को और बोर्ड ने हमारा सेंटर ले लिया. we had external invigilators but we had home center. And I remember मेरे टाइम पे मतलब when I was appearing for 10th मेरा सीट आया था एकदम लास्ट पे. like this is gigantic hall, like यहाँ से वहाँ तक मतलब I can't like categorize कितना बड़ा था. It was a gigantic hall. There were students all around. I think 100+ people were sitting on the same hall and मैं एकदम last bench पे बैठी थी.
for some reason मेरे रोल नंबर के बाद there was this one nosy invigilator. He was literally standing next to me throughout my exam, specifically मेरे साइंस के एग्जाम्स के दिन जिसमें मतलब I am like a डब्बा in science and specifically physics और chemistry exam और probably maths के exam के time पे he was like literally on my neck all the time, like peeping into my paper. मतलब अंकल जितना भी आता है उतना भी मैं नहीं लिख पाऊंगी, अब प्लीज थोड़ा आगे चले जाए. एंड आई डोंट नो व्हाट ऑब्सेशन दीस इन्विजिलेटर्स हैव. फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच वालों को लेके इन लोगों को कुछ अलग ही ऑब्सेशन है. दे जस्ट वुड नॉट मूव, लाइक वहां पे खड़े हैं तो वहां पे ही खड़े हैं. एंड दैट इट वाज प्रोबेबली अ गाय. I don't remember was it a woman or a man, but yeah, whoever it was, they was just standing right next to me and it like made me distracted a lot. But by the end of it, I was like, yeah, fuck it, जितना आता है मैं लिखूंगी. I don't care if he's staring into my paper. I did decently well in science, but yeah. मेरे 10th के बोर्ड्स में वो लाइक हमारा जो हम लोग दूसरे स्कूल में गए थे तो वहाँ का टीचर्स बहुत अच्छा था. They were like so much like supportive and all. उन्होंने कुछ ऐसा भद्दा या फिर गंदा बिहेव नहीं किया हमारे साथ कि यार दूसरे स्कूल के बच्चा है. बिकॉज वी वर ऑन लाइक इट्स अ स्मॉल टाउन, सो सभी लोगों को सब स्कूल के बारे में पता होता है कि ऐसा कुछ कांड हुआ है इसलिए ये बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पे. तो उन्होंने ऐसा कुछ टॉन्ट या फिर कुछ नहीं किया. दे वर सो नाइस टू मी and not me, everyone. I'm not a special person there. And लेकिन इन्विजिलेटर हमारे टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था. नॉट टू मी बट आई गेस I had a friend, not had, he's still there, but वो उसका सीट पड़ा था लास्ट बेंच. And we all know him that he is not someone who is going to cheat. And but उस इन्विजिलेटर को पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम था. उसको उसका पेपर ले लिया, उसको लिखने नहीं दे रहा था. एंड वी आर ऑल लाइक वो इन्विजिलेटर बता रहा था कि वो चीटिंग कर रहा है. लेकिन यू नो लाइक when you grow up with few people, you trust them. Yeah, you know that who can cheat or who can not. And like कोई एग्जाम में तो एक दो सवाल सब ही पूछेंगे. तुम इतना तो अगर तुम पूछ नहीं पाओ तो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है. और या फिर तुम इतना मतलब बिहेवियरल साइड से तुम इतना भद्दा हो कि कोई तुमसे बात नहीं. मोस्टली इट इज अ टॉपर बिहेवियर. they don't share information. Even I think some toppers also like some of them do. ये topper है. No, I would like to clarify this here. I did not intentionally want to help people who were not my friend. I did not इसका मेरे साइड हमेशा पास पड़ता था. Yeah, we had adjacent seats but across the row. So if I was sitting here, she would sit right next to me but on the other row. And we were always close by. In like college I'm talking. And there have been instances where people have asked for answers from me, and I'm very truthfully saying this from a topper's POV. You don't want to help people who are not your friends. Not because you're a bitch, but simply because I have studied. Why didn't you? Why would I tell you? Why मतलब तुम पकड़े भी जा सकते हो ना. तो अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो तुम अपने दोस्तों के लिए ले. Got also this one time semester 2, if I'm not very wrong, I don't want to take the name of that person. She was sitting behind me, I think. No, she was sitting in front of me, like ulta sitting. Semester 2, the first offline exam that we had. But I will tell you the name afterwards. She was sitting. तो हमारा क्या था मेरा like university wise also I am the first from my department, and because of my surname and everything, name क्योंकि मेरा name initial starts with A. So university wise I was the first, and class roll number wise also I was first according to the roll numbers. And seating ulta hua tha. It's not like 1 2 3, it was like 1 2 3. So I was the first person and the person next to me was sitting in front of me. And for something she had asked an answer to me, and मैं ना एग्जाम के टाइम पे मतलब gone are the schooling days when I used to be the person asking answers. College में I was like fully focused. When I'm writing my answer, I'm like into it. If you nudge me or like I would like don't disturb. So I was like that kind of. And she like did this from the front and she asked an answer to me, and she was like doing like this. और मुझे ना थोड़ा ऐसा hearing का है, मुझे सुनाई नहीं देता उतना, and especially when my concentration is somewhere else, मुझे और भी सुनाई नहीं देता. तो what I did was I like did this थोड़ा सा, and I wanted to hear कि क्या बोल रही है, कि what is she asking me.
और सामने से इन्विजिलेटर, एंड इट वाज आई वाज सिटिंग ऑन द लाइक नॉट एक्सट्रीम एंड बट पीछे की तरफ के बेंच में ही थी मोस्टली मैं, हाँ, I remember. 3 या 4 बेंच पहले होंगी. Invigilator was standing at least 6 to 7 rows pehle, and that like lady, she saw me from there in the corner and she was like, are you talking to somebody? I will cancel your paper. I was like, fuck your answer. I don't want to get my paper cancelled. I never looked up. I did not tell her. I did not care कि वो क्या पूछ रही है, किस चीज का उसको आंसर जाना है. मतलब मुझे मेरा पेपर प्यारा है. I don't want to get my paper cancelled for telling you one answer. And I have been a little bitchy about it. कॉलेज में about this. फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं, फिफ्थ सेमेस्टर नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा हुआ था कि हमारा साउथ कोलकाता में पड़ा था सीट, एंड उसमें someone from our class, I think you would remember that girl has like a lot of experience, you know, she used to work a lot. तो उसने एक दिन मुझे मतलब थर्ड पेपर के दिन अगर शायद मुझे बताया था, मेरा सीट उस वक्त मैं और रितु एक साथ बैठ रहे थे, and you were like back of the two bench, I think पीछे semester 4 I guess, दो bench पीछे तू बैठ रही थी, मैं इस तरफ बैठ रही थी, तू इस तरफ semester 4, तो मैं और रितु एक साथ थी, और दो बेंच पहले वो लड़की थी, and she was like मनाली तो किसी को आंसर नहीं बताते, and I don't know, मतलब I know who it is. I just got so like pissed and I randomly just said मैं क्यों बताऊंगी तुझे, मैं तो अगर रिस्क लूंगी तो मैं अपने दोस्तों को ले लूंगी ना, मैं तुझे क्यों बताऊंगी. And she was like and then she didn't know what to say again. मैं अपने दोस्तों के लिए अगर मैं अपना पूरा पेपर I would risk it for my friends, but I'm sorry, I wouldn't risk it. I as a like school में as a student I have asked answers from people. I'm not gonna lie. मुझे ऐसा चांस नहीं मिला क्योंकि मेरा स्कूल में आया, मेरा नसीब इतना खराब था. मेरा मतलब ये रेडार में रहती नहीं, रेडार में मेरा सीटिंग ही ऐसा पड़ता था. मेरा 10th का मैं सीटिंग बता रही हूँ. मेरे दोस्त नहीं थे आसपास, मतलब स्कूल में like my now existing proper friend from school is only Bhashati and her seat was nowhere near me. मेरे आगे पीछे जो बैठते थे they are not my friends. That is the reason I was a little hesitant also, but मैंने पूछा था, मैंने बहुत बार मेरा 10th का बोर्ड mostly science में पूछा था, but yeah, my crush used to sit 2 seats from मेरे 10th के बोर्ड में सीटिंग अरेंजमेंट था. मैं किसको पूछूं, मतलब 4 साइड्स अगर मैं देखूं, सामने पीछे लेफ्ट एंड राइट, सामने और पीछे जो था वो दोनों मुझसे पूछते थे, एंड लेफ्ट में जो था उसको ठीक ठीक सुनाई नहीं देता था कि क्या पूछेंगे आप, हियरिंग प्रॉब्लम. राइट में जो था उसको सुनाई देता है कि आप क्या पूछ रहे हो, लेकिन वो जिस वॉल्यूम में बता रही है वो टीवी का म्यूट वॉल्यूम में आपको आंसर बताएगी. तो उस वक्त आपको लीप रीड करना पड़ेगा, तो आपको हार्डली मिलेगा लाइक 1 से 2 मिनट आप टीचर की नजरों से बच सकते हो, उसमें आप बैठ के लीप रीड करोगे. ये क्या बता रही है, और आप वो आंसर सुनोगे जिसका आपको पता ही नहीं है, तो आपको फुल्ली गेस मारना है कि क्या वर्ड्स बता सकती है ये. मतलब ऐसा था मेरा नसीब. इसलिए 10th से मैंने वो 10th तक मेरा था कि मेरा डाउनफॉल चल रहा था 6 से 10th तक, तो मतलब 11th से मैंने 10th का एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट इतना मतलब डाउनफॉल हुआ मेरा. मैंने एक चीज मैंने अपने ब्रेन में सेट कर ली कि अब जो देना है एग्जाम में खुद से देना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है कि सीटिंग आपको जो पड़े. मतलब एक टाइम था इसका था, मतलब 6th सेमेस्टर में हम दोनों का जो सीट हम लोग एक साथ, luckily we were always in the same room and closer. तो और मतलब हम दोनों जब साथ बैठते ना, इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंसी कि इसके भरोसे मैं जाऊंगी या फिर ये मेरे भरोसे जाएगी. मैं भरोसे नहीं जाती थी एग्जाम हॉल में. हाँ, क्योंकि अगर स्कोप मिल भी जाए पूछने का, क्या गारंटी है वक्त मिलेगा. या आई वुड लुक एट हर द सेम टाइम शी इज लुकिंग एट मी, और लाइक शी आल्सो नो द करेक्ट आंसर. या आई कुड से द रॉन्ग थिंग आल्सो. या तो 6th सेमेस्टर में जब हम लोग वो देखा कि लिस्ट में कि किसका कौन सा रूम, आई वाज डेवास्टेटेड. शी वाज डेवास्टेटेड. मेरा 6th सेमेस्टर में अकेला का एक रूम पड़ा था. हां, तेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ पड़ा था. आई वाज 6th सेमेस्टर वाज ट्रॉमेटिक क्योंकि none of my friends were in my room for the first time in the 5 semesters we have given offline exams in college. मेरा रूम मेरे सारे दोस्तों से अलग पड़ा था. हम सारे ग्रुप के सारे एक रूम में, तो ये अलग थी किसी और दोस्त के साथ. मैं फर्स्ट थिंग एंड मेरा पता नहीं क्या, तो मतलब हर एग्जाम से पहले सेमेस्टर में मैं भागती कॉलेज पकड़ती थी. इवन इफ आई यूज्ड टू लीव होम
अर्ली लाइक वेल इन एडवांस कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता था, लाइक ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो गया, ट्रेन लेट हो गया, बस लेट हो गया, फॉर सम रीजन आई वाज मुझे ऑलवेज पक्का याद है 6th सेमेस्टर के एग्जाम के ठीक एक रात पहले मैंने ग्रुप में बता रहा था, सब डिस्कस कर रहे थे कब निकलेंगे, मैंने टाइम बोला कि इस टाइम में निकलते हैं, इस वक्त तक पहुंचते हैं। ये मैं टेक्स्ट में लिखी तो पागल है, इतने जल्दी कौन निकलेगा घर से। अरे मैं गांव से आती हूँ, अरे मुझे पता था कि ये लेट होगी। मैं ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले ग्रुप first बोल रही exam थी का। और दो श्रीजीता होती तो वो पहुंच गई थी, बोल बता सबको पूछ रही थी तू कहाँ है, और बता रही कि मुझे तो ट्रेन नहीं मिल रहा। मैं एग्जाम के मतलब वो टाइम होता है ना, एक बफर टाइम रहता है, एंट्री टाइम एक होता है, पेपर्स का गिविंग का टाइम एक होता है, एंड देन एग्जाम स्टार्टिंग का टाइम होता है। एग्जाम स्टार्टिंग के 5 मिनट पहले मैं घुसी हूँ कॉलेज, भागते भागते गई हूँ मेट्रो स्टेशन से उतर के, मैं लकीली मेट्रो स्टेशन की करीब था, मैं भागते भागते आई हूँ नीचे कॉलेज में। एंड फर्स्ट थिंग आई डिड वाज बाहर जो लिस्ट रहता है रोल नंबर्स वाइज का, मैंने वो लिस्ट देखा, मेरे दोस्त खड़े, फर्स्ट दिन सबाई शुरू तो फर्स्ट दिन मैं जैसे ही वहां पे गई, मतलब गेट में घुसने के 5 मिनट अंदर मैं गई हूँ, and everybody was looking at me with this बेचारा face. I was like, what the fuck is happening? मैंने तो इसको जाके हक दे के तेरे साथ हुआ क्या कुछ। तो मैं गई हूँ, मैं घुस भी नहीं पाई हूँ, ठीक है, वहां तक मैं, यहाँ पे मेरे सारे दोस्त खड़े, मैं यहाँ तक आई हूँ, मनाली यहाँ तक आई, आके मुझे ऐसे करके वो पकड़ के ले गए। अरे क्या हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, कुछ हो गया क्या? एंड देन आई वाज लाइक व्हाट द फक इज हैपेंड। एंड देन रीतू मेरे को बोलती है कि तू जा एक तो लिस्ट नाम का देखा, मतलब रूम नंबर का देख क्या। मैं गई, मैं मेरा रूम नंबर के वाइज मैंने रोल नंबर देखा, फिर मैंने इन लोगों को आके पूछा कि तुम लोगों का रोल नंबर कितना है, तुम लोगों का रूम कौन सा आया है, फिर मेरे को बोला कि हम लोगों का तो ये रूम नंबर, इट्स नॉट द सेम, तो मेरा रूम अलग है, तुम लोग का सारा रूम अलग है। भाई मेरे को, मैं सच में बोल रही हूँ, फुल प्रिपरेशन के साथ गई थी, बट फिर भी मेरे को रोना आ रहा था, आई वाज ऑलमोस्ट टीयर, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स नॉट लाइक आई वाज डिपेंडिंग ऑन समबडी फॉर द आंसर्स और व्हाटएवर, बट वो इमोशनल मॉडल सपोर्ट के लिए मुझे चाहिए था, एटलीस्ट लास्ट सेमेस्टर था क्योंकि। बट या ये एग्जाम के पहले रात को, मतलब जिस दिन हमारा एग्जाम था, आई थिंक 5th को हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ उसके दिन के पहले 4th को रात को ये मेरे को एक पैराग्राफ लिख के भेजी है व्हाट्सएप पे कि आई विल बी सिटिंग विद यू इन योर रूम फॉर द लास्ट टाइम, आई लव ब्रो यू डोंट डू दिस टू मी। लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि रूम अलग है, आई वाज ऑल, हमें रूम का पता रहता था, लेकिन सीट नंबर क्या होगा वो हमें रूम में जाने के बाद में पता होता। तो जब तक मैं वो लिस्ट देख के वो रूम तक जा रही थी, आई वाज ऑल प्रेइंग इन माय माइंड कि मुझे फर्स्ट बेंच चाहिए, मुझे फर्स्ट बेंच में सीट चाहिए। और मैंने बताया भी मेरे ग्रुप में, बाकी वो लोगों को बस तो पागल है, फर्स्ट बेंच कौन मांगता है, बट आई न्यू इन माय माइंड कि मतलब मेरा क्या है कि मतलब वो जब सेकंड और थर्ड बेंच में बैठोगे ना, आसपास के जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट कुछ होते हैं, आई थिंक एवरी बैच पीपल कैन रिलेट टू दोस पीपल, वो ना खुद लिखते हैं, ना वो खुद लिखते हैं, ना वो आपको लिखने देते। एंड मेरे तो पास ही, मेरे तो सीट पार्टनर ही था कि उसको 3 घंटे के एग्जाम में उसको 4 बार सुसु जाना था, और मेरा ही सीट था बाहर साइड, मुझे हर बार उठना पड़ता था। एंड लास्ट आई वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज लाइक यही पे सुसु करते। एंड मतलब क्या नसीब थी कि जो गार्ड्स भी पढ़ता था, एक एग्जाम में था, एक गार्ड आया इन्विजिलेटर, वो सेकंड हाफ में वो आया, उनको उठना नहीं है, उनको पेपर नहीं देना है, वो बैठे रहेंगे। एंड आई वाज लाइक इन द लास्ट 15 मिनट्स, उस वक्त मुझे पेपर ऐसे चाहिए, मैं लिखूंगी, ऐसे मोमेंट पे वो बता रहे कि ले आके ले जाओ। एंड मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरा फेस का एक्सप्रेशन वैसा हो गया था। श्रीजीता एग्जाम के बाद मुझे बता रही कि तेरा फेस देख के लग रहा था तू कुछ जाके मार डालेगी। नहीं, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता, बट मेरा सबसे अनोइंग चीज जो लगता था कॉलेज में वो है, मैं रूम के अंदर नहीं जा पाऊंगी, कोई ना कोई आके मुझे पकड़ेगा रूम में अंदर घुसने से पहले। आई नॉट टू ग्लोट, बट आई वाज द डिपार्टमेंट टॉपर एंड द कॉलेज टॉपर, तो नॉट टू बात है, प्राउड होने की बात है, तो क्यों नहीं होंगे। मुझे एग्जाम रूम में, मतलब हॉल में जाने से पहले कोई ना कोई आएगा, हर एग्जाम के पहले आके, ए आना आंसर बता देना प्लीज, ए आना थोड़ा घूमना प्लीज, ए आना ये बता देना, तू सब पढ़ के आया, मतलब ब्रो आई एम नॉट इन द मेंटल स्टेट राइट नाउ, मतलब हाँ दे बोलूंगी। बहुत बार लोगों ने ऐसे कोनी मारा है, बुलाया है, not because I did not want to tell them the answers, but because एग्जाम में लिखने के टाइम मुझे, मतलब मेरी अंदर की सारी ह्यूमैनिटी चली जाती है।
एटलीस्ट कॉलेज में आई लुक्ड एट द एंटायर एग्जाम हॉल एज अ बैटलफील्ड कि यहाँ पे कोई मेरा दोस्त नहीं है, यहाँ पे एवरीबडी इज माय कॉम्पिटिटर. तो मुझे एंड आई नेवर कम्पीटेड विद एनीबडी इन माय एंटायर डिपार्टमेंट. मैंने फर्स्ट हमारा जो ऑफलाइन सेमेस्टर हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर, उस सेमेस्टर में क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन हुआ था और वो चीटिंग करने की आदत पड़ गई थी, देख के लिखने की आदत पड़ गई थी. सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के गई थी क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑनलाइन था और दूसरी बात हमारा आईसीसी भी कैंसिल हो गया था. तो वो पूरा ऑफलाइन बैठ के एग्जाम देने का आदत ही चला गया था फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर प्लस, आई थिंक मोर देन हाफ अ ईयर. एंड वो आदत चला गया था एंड आई वाज लाइक फक, आई डोंट वांट टू फेल, आई डोंट वांट टू टेक अ सप्ली राइट इन द फर्स्ट ऑफलाइन सेमेस्टर. तो मैं पढ़ के गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ऑफलाइन एग्जाम में मैं पढ़ के गई थी. एंड फर्स्ट ऑफलाइन एग्जाम में आई टॉप्ड एंड उसके बाद आई वाज लाइक ब्रो, ये जो तुमने दिखा दिया है दृश्य हमें, अब इसको हम कैसे भूले. अब इसी के लालच में मैं पढ़ूंगी. And I did not compete with anyone throughout my college. Nobody, not even my friends. दूर तक नहीं. I was like, भाई मैंने एक पोजीशन पे मेहनत से जो भी है I have come here. अब मुझे इस पोजीशन को मेंटेन करना है. I know a lot of people will come at and a lot of people very मतलब looked at me with vengeance. ठीक है कि अरे ये कैसे टॉप कर सकती है, like मतलब वैसा लुक था. कुछ लोगों का लुक था एंड कुछ लोग मतलब they were not cordial to me for that reason, for some reason, and I don't know, I was not bitchy to anybody in college, but पता नहीं they had this look on their face कि मतलब you know the typical mean girl face. और मैं किसी से I was like unbothered about anybody in college कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कंपटीशन तुमको अगर तुम्हारा मार्क्स बीट करना है वो अलग बात है, मुझे मेरा मार्क्स बीट करना है, मुझे मेरे पोजीशन के लिए. आई थिंक समवेयर डाउन द लेन मतलब बंगाली में अगर वो और क्लियर वर्ड्स में बताते हैं, लेट्स नॉट स्टिक टू द बंगाली प्रोवर्ब, हिंदी में ही बात करते हैं. तो इट्स लाइक जलते हमसे बहुत लोग थे लेकिन हम लोगों का ग्रुप इतना स्ट्रांग था कि कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया. टच मतलब मैंने मतलब बहुत ऐसे थे कि बहुत जलन हो रही थी, नॉट ओनली इन आवर डिपार्टमेंट, आउट ऑफ द मतलब इट्स नॉट जस्ट कि कॉलेज खत्म हो गया. आई नो सम पीपल हु लाइक लिटरली are spiteful towards our whole group even after graduating for 5 months. But कुछ उखाड़ नहीं पाते वो लोग. No, लेकिन we know that वो दिन रात बैठ के ऐसा प्रेयर तो करते ही होंगे. फर्क नहीं पड़ता. Having a whole group of, I wouldn't say toppers, I would say a whole group of smart and intelligent people. And when I say smart and intelligent people, I'm not saying just because they are my friends or I'm friends with them. I'm saying because genuinely each of these girls in my group, they are intelligent from every aspect of their life. They are emotionally intelligent, they are intellectually intelligent, and they are street smart. You leave anybody of us in the group, ठीक है, रास्ते में कुछ भी, they will just somehow survive that situation and come back. ये तो पहली बात थी. ये and Ritam are first कि you leave them in any situation, they will just come out of it in 5 minutes. मतलब like that. उस comparison में मैं थोड़ी लो हूँ, but it is a flex to be a part of a group where everybody around every one of us have excelled in other departments. Everybody no one tried to snatch their department. Yeah, true. And healthy female friendships also don't survive on the basis of jealousy. मतलब अगर वो थोड़ी भी jealousy, as I told you, my girls, they are not my competition. I never looked at them as a competition ever. Even in college, I just knew कि मुझे मेरे spot के लिए fight करना है and I will. That was my calling. That was my benchmark for me. My competition is not the fact that she is sitting right next to me or somebody is sitting right or whatever. I have to beat her score. क्यों करना है competition? मतलब I beat myself. If I beat myself, then I'm beating automatically everybody else in the room. And वो competition, healthy competition is needed. But वो vengeance नहीं आना चाहिए कि why are you better than me? या how are you better than me than this? There are things that I lack, she is better at. There are things she lacks, I am better at. We uplift each other on those spots. उसको अगर पता है कि मैं किसी चीज में उससे बेहतर हूँ, she will come and ask for help from me. And simultaneously मुझे अगर पता है कि there's something she expertises in, I will go and ask for it. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई jealousy की बात नहीं है. उसका डिपार्टमेंट अलग है और उसमें इंटेलिजेंस इज टॉप. तो ये मार्क्स या जीपीए ये बहुत ही छोटी चीज है क्योंकि कॉलेज
3 साल का था, या स्कूल की दोस्ती कुछ लोगों के साथ 5 साल 10 साल 15 साल की थी, बट उसके बाद रैंडमली जब एक दिन मिलोगे यू वुडंट आस्क दैट पर्सन कि वो तेरा 10th में कितना परसेंटेज था, तब तुम्हारी रिलेशनशिप या दोस्ती सरवाइव करती है। तो दोस्ती या मतलब प्रोफेशनल कोई भी या एकेडमिक राइवलरी के लिए दोस्ती टूट जाए, दैट इज नॉट समथिंग आई थिंक you should have like a very clear mental segregation ki this is the area that I compete with them with, and this is the area that is completely separate from the academic or the professional part. And I think circle matters because I won't lie, मतलब 10th का वो डाउनफॉल के बाद जब 11th से मैंने I started like the battle again, I entered the battlefield again, and 11th 12th में I always used to get थर्ड सेमेस्टर में, एंड मुझे बहुत जलन होती थी कि मतलब मैं आई यूज्ड टू गिव माय बेस्ट, एंड मुझे जब वो रिजल्ट आता था मुझे बहुत जलन होती थी कि ये सेकंड क्यों होगा, ये फर्स्ट क्यों होगा, आई डिजर्व दैट प्लेस, एंड मतलब एंड 12th का जब वो रिजल्ट निकला, हमारा 12th का जो हमारा बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ था कोविड के लिए, तो हमारा जो हुआ था कि फर्स्ट एंड 11th का मार्क्स एंड 12th का प्री सिलेक्शन और सिलेक्शन उसका कंबाइन करके हमारा परसेंटेज निकला, तो उसमें आई फिर से गॉट थर्ड, मतलब मुझे इतनी मतलब आई 3 नंबर से नफरत हो गई। हाँ, मतलब वो जो मैंने 10th के बाद वो जर्नी स्टार्ट की थी इसी मतलब इसी मंजिल को हासिल करने के लिए, 12th को मुझे 90% से अबव चाहिए, वो हुआ, लेकिन मैं उस खुशी में मतलब वो क्या कहते हैं इसे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, मुझे वो एक चीज हो रही थी कि ये मुझसे आगे निकल गया, एंड मम्मा वाज ऑल काउंसलिंग ये कुछ नहीं होता है ये सब, मतलब लेकिन मेरे दिमाग में वो घुस गया था, एंड मैं उसी मतलब मेंटलिटी से मैं कॉलेज में आई, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर तो घर में बैठ के हो गया, अब सेकंड सेमेस्टर में वी वरंट इन अ सेम ग्रुप, मतलब ये लोग ग्रुप थे, मैं और शर्पा अलग ग्रुप में थे, तो आई डिडंट नो हर दैट मच कि ये पढ़ाई में कैसी है, कि ये कितना, we were still sitting next to each other, but we were not as close but we were on good terms, yeah we were mutual but second semester का जब रिजल्ट निकला तब तक हम लोग एक ग्रुप में थे, तो when she got like she got the first position, I think Proka got the second position, I guess probably Proka, yeah, she was only second almost तब उस वक्त आई डोंट नो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मन से वो बिठा रही थी कि मेरे अंदर सोच की मतलब अचानक से वो सोच लगा, लेकिन नेचुरली मेरे अंदर में कुछ वो ऐसा फीलिंग नहीं है, आई वाज लाइक दे आर डिजर्विंग, दे गॉट द पोजीशन, एंड नेचुरली हो गया, एंड आई डोंट नो बट सेकंड सेमेस्टर से वो दोस्ती हो गया, एंड उसके बाद से हर सेमेस्टर में we were all supporting each other throughout the exams time, and I think exams के बाद वो mental support आपकी friends से बहुत important है, a friends who will always be like छोड़ ना यार पढ़ाई नहीं करते, मैंने भी नहीं पढ़ा, तू भी मत पढ़, that is not a good friendship। एक अच्छा दोस्त अगर खुद भी ना पढ़े फिर भी चाहेगा कि आप पढ़ो, आप एग्जाम अच्छा दो, तो वी हैड दैट फ्रेंडशिप कि हम लोग अगर ग्रुप में थोड़ी देर बात भी करते थे ना, वो हम लोग बताते ये बहुत बात हो गया, अब जब पढ़ने बैठे हम सब पढ़ने बैठेंगे, फिर रात में एक बार आएंगे बात चेकअप करने क्या हुआ, एंड एनी लाइक जितना भी टफ पेपर हो, अगर कोई बता दे कि यार मेरे से ये टॉपिक नहीं हो रहा, कि कोई समझे, सब आ जाते थे समझाने में टॉपिक। मैंने तो मतलब 12-12 15-15 मिनट के वॉइस नोट्स करके भेजे हुए हैं टॉपिक समझाने के लिए, एक बार उसने मुझे भेजा, स्वरूपा ने मुझे भेजा है, तो इट इज अ वेरी म्यूचुअल थिंग थ्रू आउट आवर, इट वाजंट अ कंपटीशन कि मैंने पढ़ लिया मैं इसको बता दूंगी, मैंने पढ़ लिया मैं इसको नहीं बताऊंगी, अब ये नहीं पढ़ के जाएगी तो आएगा तो मैं लिख के आऊंगी, इसको नहीं आएगा। हम लोग तो इवन ये कहते थे कि मैं टॉप ना करूं, लेकिन वो टॉपर नहीं होना चाहिए, तू टॉप करना चाहिए, कि हम लोगों में ऐसा फैक्ट था कोई भी टॉप करे, ग्रुप में से किसी को करना पड़ेगा, आउट ऑफ द 7 people there are in the group somebody has to take the position, ग्रुप के बाहर वो टाइप किसी को नहीं जाना चाहिए, एंड टच वुड वो नहीं गया ग्रुप के बाहर किसी को नहीं गया। 6th सेमेस्टर मुझे पता नहीं कि, लेकिन 5th और 6th सेमेस्टर में शायद एक सेमेस्टर में
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब हमारे ग्रुप से ही था लाइक हम ही है क्लास में से। एंड इस वक्त अगर मतलब ऐसा हो गया था कि अगर बाहर किसी को बताओगे तो बाहर वो सब हमारा इलाका है। हमारा कुछ लोग सोचेंगे कि पेपर इजी था, मतलब पूरा ग्रुप कुछ पेपर नहीं इजी होता है, कैलकाटा ये सब यूनिवर्सिटी बकवास है, ये कैलकाटा सब बकवास यूनिवर्सिटी है। था वो। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि लोग सीयू में 6 CGPA मतलब लाकर दे आर सेलिब्रेटिंग, they are going out having parties, cutting cakes and all of that. एंड हमारे यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज में जो था, हमारे ना तो हमारे कॉलेज में कोई ऐसा सपोर्ट था कि यू कैन डू चीटिंग, ना ही हम लोगों का सीट भी पड़ता था, एज वी आर फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज तो हमारा सीट हमेशा गर्ल्स कॉलेज में पड़ता था। एंड इन्विजिलेटर्स भी बहुत खड़ूस थे। लेडी प्रेमोन में जो पढ़ा था दोज वर लाइक वो इन्विजिलेटर्स वर लाइक ठीक ठाक मतलब वो साउथ strict थे। कैलकाटा वाज वर्स्ट। उन लोगों को खुद को रूल्स नहीं पता होता। 4th and 6th semesters were terrible, मतलब different. 4th and 5th or 4th or 6th, थर्ड फोर्थ हाँ 2 सेमेस्टर्स का हम लोग का साउथ कैलकाटा में सीट आया था। इवन अभी कॉलेज वो कॉलेज हमारा खत्म हो गया, नाउ आई एम इन अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी एंड उसका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई लेट देम नो एंड मैंने मेरे को कॉल किया है, मैंने इसका एक इच्छा था कि मैंने इसको वो बोला तो इससे ज्यादा लाना, तू इसको बेंचमार्क रख कि तू 0.1% ला बट तू इससे ज्यादा ला। मुझे ये भी पता है कि मैं खुद का होना अगर मैं फेल कर जाऊं बोले तो फेल कर, लेकिन उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए मुझे फर्क नहीं पड़ता बट तुझे उससे ज्यादा मार्क्स लाना है, But, अगर 0.1 भी लाना है तो लाना है। बाय गॉड्स विश रिजल्ट अच्छा गया था and मैंने इन लोगों को बताया। इसने मेरे को कॉल किया मतलब मार्क्स बताने के लिए, मैं तो घर पे जश्न मना रही हूँ कि भाई ये तो हो गया। एंड फिर ग्रुप पे जाके मैंने बताया कि ग्रुप पे सब लाइक बाकी सब क्या कैसा हुआ, मैंने बताया कि इन दोनों का मतलब 2 मुझसे ज्यादा थे, 2 मतलब सीजीपीए में 9 के घर में था दोनों लोगों का, मैंने बताया। वो लोग कहते वो मैंने नहीं कहता तू ही टॉपर है हमारे लिए क्या भाई बाकी पूरी भाड़ में जाए अलग के जश्न है यहाँ पे। एंड लाइक एवरीथिंग मतलब उस दो दिन बाद ही प्रज्ञा तीसरा का रिजल्ट आया, प्रज्ञा टॉप किया है, प्रज्ञा ने टॉप की है। ओह माय गॉड प्रज्ञा डिजर्व्स अ फेयर, मैंने देखा नहीं है ग्रुप। अरे यार आई फील सो सैड। प्रज्ञा गॉट आई थिंक 8 पॉइंट्स समथिंग बट उसने वो पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी। पता नहीं था, वी वर लाइक सो हैप्पी एंड लाइक मैं जाऊंगा आज प्रज्ञा को स्पेशल मैसेज पे। आज प्रज्ञा सोची कि आज क्या हुआ है, आज ही याद लगा मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं मैसेज। आई थिंक तेरा कुछ फनी एक्सपीरियंस है एग्जाम का, नॉट ओनली बोर्ड्स या फिर कॉलेज लेकिन ओवरऑल अपने सारी जिंदगी में तो जितना भी एग्जाम दिया है। फनी नहीं भाई, मेरा ट्रॉमेटिक एग्जाम एक्सपीरियंस रहा है, मतलब आई वुडंट लाइक टू से दोस थिंग्स, या शुड आई मीन नो आई डोंट थिंक इट्स अ लिटिल प्राइवेट। तो फनी इंसिडेंट क्या था? फनी देखो द थिंग इज दैट मैं स्कूल में ज्यादा उतनी पढ़ाकू बच्ची थी नहीं, तो मेरा मतलब मुझे जितने भी मार्क्स आते थे आई वाज ओके, आई वाज कंटेंट कि मुझे उतना ज्यादा मतलब उतना उच्चाकांक्षी में थी ही नहीं कि मुझे इतना मार्क्स लाना है या इतना कुछ। इन लोगों का जैसे स्कूल से वो है, मुझे वो मेरा स्कूल में वो बीच का वो जो एक्चुअली जो वो जब बच्चे सीरियस होते थे उस वक्त मेरा यस मैंने पहले उठा था। मैं बोरिंग थी, मैं स्कूल में बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। ये थोड़ा मेरे में नर्डीनेस आया आफ्टर 11th-12th, और मेरा मतलब फनी इंसिडेंट था नहीं। स्कूल तक 10th तक मैं खुद लोगों से आंसर पूछती थी, 11th-12th के बाद लोग मुझसे आंसर पूछते थे, मैं कभी कभार बताती थी कभी कभार नहीं बताती थी। कॉलेज में ऑलमोस्ट मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब 1-2 आंसर शायद से बताए होंगे, बट मुझे लोगों ने मतलब एक या 2 आंसर आई थिंक आई हैड आस्क्ड फ्रॉम, वो भी एसएक्यू था, किसी एक सेमेस्टर का होगा आई थिंक साउथ कैलकाटा के ही किसी एग्जाम में, तो इट वाज आइदर सेम 3 और सेम 4। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, सेम 3 वाज द हार्डेस्ट। एक क्वेश्चन पूछा था वो भी गलत बता दिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। मैंने भाई दिस इज द रीजन आई हैव ट्रस्ट यू, मैं किसी से नहीं पूछूंगा, अगले दिन मैं किसी से आंसर नहीं पूछूंगा, इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब यू नो दैट कुछ लोगों से लेजिटिमेट आंसर। भाई फनी इंसिडेंट अभी याद आया मुझे, साउथ कैलकाटा के किसी एक सेमेस्टर में, प्रोबेबली 3rd या 4th सेमेस्टर में, ऑब्वियसली वो दोनों सेमेस्टर ही है। 3rd या 4th सेमेस्टर में मैंने there is this person who I wouldn't take the name for obvious reasons, but yeah, she worked at some
company. It's a government company, and she was an intern sort of there, and मैंने उससे पूछा, एक 1 mark का आंसर था कि उस कंपनी का CEO या हेड कौन है. तो मैंने उससे पूछा, एंड शी इज फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, शी इज नॉट फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट. मैंने ये सोच के पूछा कि वो वहाँ काम करती है तो उसे पता होना चाहिए, शी शुड नो द जीके ऑफ हर कंपनी. एंड मैंने उसको पूछा, and she is looking at me like I asked her about her property papers. I was like, bro, you are from a certain department, तुझे पता होना चाहिए, that you should know that for GK. And she looked at me like, है. I was like, okay, sorry, गलती से मैंने. And then फिर मैंने वही आंसर आई थिंक किसी और से पूछा था, मेरे ही डिपार्टमेंट के, एंड जो आंसर मुझे बताया गया वो आंसर मैंने लिखा हुआ है, बट वो आंसर गलत था. तो उसके बाद से मैंने और किसी से आंसर नहीं पूछा. मतलब गलत अगर लिख के आऊंगी, मैं खुद गलत लिख के आऊंगी, दैट इज ऑल्सो बेटर, बट किसी से पूछ के गलत लिखना ठीक है. ये पॉडकास्ट जाने के बाद ग्रुप में एक तुझे इतना सुनाएगा ना. इतना क्या करूं यार. I was not dickish. मतलब I'm waiting for her to be getting bashed by you know whom, by from our group. Yeah, this was funny. बाकी तो मैं I was like very serious about my exams. I was very focused in writing my paper. मेरा एग्जाम का क्या होता था, फर्स्ट 30 to 40 minutes मैं आराम से लिख रही हूँ, ठीक है, एकदम मस्त, टेकिंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एकदम फर्स्ट के 2-3 पेज एकदम मस्त हैंड राइटिंग है, एकदम धीरे करके. और मैं सीक्वेंशियली जाती हूँ. तो सीयू का पेपर का पैटर्न कैसा होता है, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर मीडियम शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. मैं उल्टा जाती थी. हाँ, some people do it reverse in the मेरा क्या है, पेपर मतलब मैं complete लास्ट में अगर मैं वो लॉन्ग आंसर अटेंड करती तो मेरे पास वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था. तो आई गॉट अ टाइम मैनेजमेंट, लाइक जो 15 मार्क्स का आंसर था वो मैं पहले अटेंड करती थी, एंड आई यूज्ड टू गेट अ टाइम ऑफ लाइक 30 minutes to 40 minutes. मैं वो टाइम सेट करती थी, एंड देन आई यूज्ड टू अटेंड दोज इन टाइम, एंड देन लाइक 30 minutes ओवरऑल फॉर द पार्ट 2 क्वेश्चंस, लाइक वो 2 मार्क्स का जो था. उसके बाद मैं वो फर्स्ट जो शॉर्ट आंसर था उसके लिए मैं 15 मिनट हाईएस्ट रखती थी, एंड 5 मिनट स्ट्रेटेजिक वे टू डू इट, लाइक द पेपर. मेरा ऐसा बहुत हुआ था, मतलब मेरा स्कूल तक मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाती थी, तो उसके बाद आई हैड टू डू दिस थिंग कि मतलब लॉन्ग आंसर जो है वो पहले कंप्लीट करो, और शॉर्ट आंसर्स के लिए क्या है, पहले आप लिखोगे ना तो टाइम आपको पता होगा आंसर, तो आपको सोचेगी कि सिर्फ 1 लाइन लिखूंगी, मैं 2-3 लाइन लिखूंगी, अब 5 लाइन लिखूंगी, इसके बारे में पढ़ा है मैंने, तब तो मैं लिख के ही आऊंगी. ये करते करते वो टाइम बहुत कम हो जाता है. तो अब लास्ट में अब मैं करती थी, मैं 1 मार्क्स का भी इतना बड़ा आंसर, इसलिए मेरे में ये सब क्वालिटीज था, इसलिए मैं अपने बैड क्वालिटीज से मैं सीख के आई हूँ. तो लास्ट में 15 मिनट में क्या होता था, वो 10 जो शॉर्ट आंसर्स है आपको वो एक ही लाइन में आंसर देना है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी. मैं तो मतलब एग्जाम में लिखती थी एकदम मस्त मौला बन के, पहले 40 मिनट एकदम टेकिंग माय ओन स्वीट टाइम, लिखे जा रही हूँ. फिर 2 मार्क्स का आंसर स्टार्ट करते मुझे ऑलमोस्ट मतलब আমি ফার্স্ট 1 মার্কসের 10টা কোশ্চেন अराउंड 40 মিনিট লাগিয়ে লিখতাম মিনিমাম ওন সুইট টাইম. তারপর 2 মার্কস লিখতে অলমোস্ট आउट ऑफ द 3 आवर्स का पेपर ऑलमोस्ट 2 आवर्स इज गॉन. नाउ आई हैव 1 आवर टू कंप्लीट 2 to 3 15 मार्क्स क्वेश्चन. दैट वाज माय टाइमिंग बाय द वे. और मैं लास्ट के कुछ मिनट पे इतना स्पीड से लिख रही हूँ, मतलब किसी एक लाइक यूट्यूबर का ऐसा था कि इतना स्पीड से लिख रहा पेपर जल जाएगा. आई थिंक पेपर जल जाए. पहले वो 5 मिनट आधे घंटे 10 मिनट तक बोल रहे हैं. दैट इज मी. वो पहले चाय खा रहा है. यार मैं देखती थी ऐसे कौन कहा क्या लिख रहा है, कौन ज्यादा कौन. मैं एग्जाम के बीच में इसको भी देखती थी, मनाली कब मतलब शी वाज लाइक उठ के इधर उधर देख रही है कितना टाइम, और मैं जितनी बार भी देखती थी शी लाइक आई हैड अ वेरी मेरा टाइम कंज्यूमिंग का वो जो मैप था वो इसलिए बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट करके मैंने रखा था कि बिकॉज आई हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ लाइक काउंटिंग वर्ड्स. हाँ, मैं एग्जाम के लास्ट के 5 मिनट हर दिन हर एग्जाम में इतने सारे सेमेस्टर्स में मैं देख रही हूँ मनाली गिन रही है एक आंसर में कितने वर्ड्स है. एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है 15 मार्क्स का 500 वर्ड है, ये बैठ के हाँ 500 550 वो गिन रही है बैठ के एक वर्ड. आई एम लाइक ब्रो, अरे
वेरी बैड हैबिट, लेकिन 6th सेमेस्टर में मुझे एकदम टाइम इसको ट्रस्ट इश्यूज, मेजर ट्रस्ट इश्यूज। 6th सेमेस्टर में मैं हैरान हो गई थी, मतलब एक भी पेपर में मैं काउंट नहीं कर पाई, and it turned out to be the best semester of all. नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके it turned out to be a very good habit of like counting words, because मेरा टेलीविजन का जो पेपर है उसमें स्क्रिप्ट लिखो तो सबमिट करो तो सर मुझे बताया कि यार you counted your words, लाइक ये तो मेरा है हमेशा से ही, मैंने काउंट किया है, आप पूछो मैं बता दूंगी कहाँ क्या वर्ड है ये भी बता दूंगी पूरा पेपर स्कैन करके। मैं नहीं करती थी। नहीं, लेकिन मेरा फनी जो है वो बोर्ड्स या फिर ये से कॉलेज से नहीं है, दैट इज आई थिंक आई हैड लाइक मेजर 2 फनी, एंड उनमें से एक तो शायद फनी है भी नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ आज भी, लेकिन वो रिग्रेट करने लायक वो क्लास नहीं था। फर्स्ट वन इज फ्रॉम KG2, एंड वो रिग्रेट करने का क्लास नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या किया है, इसलिए मैं रिग्रेट करती हूँ। एंड ये आज खुलासा है, मम्मी को भी नहीं पता, मम्मी आज ये देखेगी, मम्मी ने ये गेस किया था, लेकिन मैं हमेशा से नहीं आज मम्मी को पता चलेगा। वो KG2 में क्या था, KG2 में हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होता था एंड एक फाइनल एग्जाम होता था। हाफ ईयरली एग्जाम का जो रिजल्ट आया था उसमें मैं फर्स्ट आई थी, तो मैं खुश हो गई थी, एंड मतलब वो तब तक मेरा पढ़ाई का स्टैंडर्ड ठीक था, लाइक 5 तक। उसके बाद से तो मम्मी तेरा दोस्ती जुड़ना गलत था इसलिए वो डाउनफॉल हुआ एक तो वो बात जो रहने दो। एंड फाइनल एग्जाम जो था, फाइनल एग्जाम में आई गेस दैट वाज इधर स्पेलिंग का पेपर था और या फिर जीके का पेपर था, एंड मैंने सारे पेपर दे दिया। वो लास्ट एग्जाम था KG2 का फाइनल एग्जाम में, एंड वो लास्ट पेपर में मेरा पहले का सब पेपर अच्छा गया था, और फाइनल वो जो फाइनल एग्जाम का दिन था उस दिन मैंने सुबह को उठ को मेरा थोड़ा तबीयत खराब थी। वो आई एम अस्थमा पेशेंट आई एम अस्थमा पेशेंट, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन इनहेलर लेने के बाद आई वाज फीलिंग बेटर। तो वी हैड अ ऑप्शन, लाइक मम्मी ने स्कूल में प्रिंसिपल को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि दिस इज द मेडिकल ग्राउंड शी इज फेसिंग, एंड तो प्रिंसिपल ने कहा कि लाइक फादर सेड दैट कोई बात नहीं, हम ऐसा अलाउ कर सकते हैं उसको, सिर्फ रिजल्ट में वो बाकी पेपर्स का मार्क्स ऐड होगा, लेकिन रिजल्ट में रैंक नहीं आएगा उसका, लेकिन शी वॉन्ट फेल। ये मुझे ग्राउंड मिला था और मैं खुश हो गई थी। मैं अभी सोच रही थी कि जाने दो, अब नाटक कंटिन्यू करते, मैं नहीं की एग्जाम देने। मम्मी ने लास्ट तक, जब तक वो मुझे रेडी करके भेज सकती थी तब तक वो उन्होंने ट्राई किया कि मैं बाहर ही रुकूंगी, तू जा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चा, थोड़ी देर का तो एग्जाम है, दे दे, रैंक नहीं आएगा। मैंने कहा छोड़ो रैंक, बचपन से बहुत हराम मैंने कहा नहीं, मैं तो पूरा मुझे वो इंसिडेंट आज भी याद है, मैं वो भूल नहीं पाई। मैंने आज तक वो रिवील ही नहीं किया कि मैंने उस दिन नाटक किया। अब पकड़ेगी आंटी तेरा कान, रुक जा भाई, एपिसोड एयर होने दे। ओह माय गॉड, लेकिन नहीं वो उसमें जब तक मैं तो रिपोर्ट का हमेशा से वो एक जगह होता था, तब धीरे धीरे जब मैं बड़ी हो रही थी तब जाके वो जो रैंक के जगह पे वो जो एक लाइन जब ये था खींचा था, क्योंकि वो रैंक नहीं देगा तो बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ मार्क्स आएगा, तब आई रिग्रेटेड सो मच कि मतलब होगा शायद KG2, लेकिन लाइक पोजीशंस आर पोजीशंस। वो बचपन में अगर हो तो आपको ज्यादा प्राउड होता है कि लाइक यू हैड did something, and second one is really funny for me, मैं आज भी हंसती हूँ उसमें। I was in class 6, that was my Bengali exam, and उस वक्त मम्मी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, तो उसलिए मम्मी एडमिटेड थी, एंड बंगाली मम्मी पढ़ाती थी मुझे। मम्मी ने पढ़ा के फिर वो एग्जाम के वक्त उसी तरह से उन्होंने डेट लिया था ऑपरेशन की, वो एडमिटेड हुई, एंड फिर बंगाली एग्जाम का दिन था, एंड इट वाज 50 मार्क्स पेपर, एंड उसमें से 15 मार्क्स का था एसे। तो द एसे वाज, और मैं बहुत स्लो लिखती थी उस वक्त, मुझे वो सब रैंक छोड़ो यार, क्या है ये सब, ये सब कंपटीशन क्या चीज है, तुम लाइव जीना सीखो। तो मैं बहुत स्लो लिखती थी, मेरे पास कोई टेंशन भी नहीं था, मैं ऐसे लिखती थी बेंच में ऐसे ऐसे ऐसे,
तो we used to get 2 hours for 50 marks and ऐसे था उस वक्त ऑप्शंस था and one of the option was football. तो अब now I want to be a sports journalist. I have interest for sport, but तब मेरे पास वो उतना फुटबॉल के लिए तो मेरा आज भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन I know some rules and all. उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी बाकी दो ऑप्शंस उससे भी बेहतर था, इसलिए I choose फुटबॉल. एंड मैंने 35 मार्क्स का पेपर अटेंड किया एंड उसके बाद 2 घंटे खत्म होने को सिर्फ 5 मिनट रह गए थे. अब आई स्टार्टेड एसे राइटिंग. मैंने लिखा, नंबर ऐड किया क्वेश्चन का, और जो गार्ड भी थे वो भी देख रहे थे मुझे. अब मैं लिख रही हूँ हेडिंग फुटबॉल, वो मैंने 5 मिनट तक लिखा. अब टीचर को इतना तरस आ गया था मुझ पे, टीचर ने कहा कि सब लोग निकल गए थे, मैं पूरे क्लास में अकेले बैठी हुई हूँ. अब टीचर मुझे बता रहे कि मनाली तुझे मैं एक्स्ट्रा 15 मिनट्स दे रही हूँ, तू लिख. मैंने एक्स्ट्रा 15 मिनट्स में सिर्फ ये लिखा, फुटबॉल 11 लोगों का खेल है. अब शाम को हॉस्पिटल में जाना था मम्मी को देखने गई थी. अगले दिन ऑपरेशन है तो मम्मी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो मैं देखने गई एंड क्वेश्चन पेपर लेके गई थी. मम्मी ने सारा क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया था कि अटेंड हो गया, वो मैंने मार्क करने नहीं छोड़ा. अब मम्मी देख रही है कि क्वेश्चन पेपर ये अटेंड किया ना, हाँ ये अटेंड क्या हुआ, मैंने ऐसे दिख रहे थे, फुटबॉल ऐप पढ़ाया था वो ना, लिखा ना, मैंने हाँ सब लिखा. मैंने पता नहीं क्या, मैंने नहीं लिखा. वो नहीं करना है, तो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि रिजल्ट आने में 1.5 महीना बाकी है. 1.5 महीने तक मैं क्यों डांट खाऊं, एकदम फाइनल में जाके डांट करेंगे. अब हमारा स्कूल में था कि पेपर चेक करने के बाद पेपर घर में देते थे एक दिन के लिए कि यू कैन चेक, अगर कोई गलत मार्किंग हुआ है कि लाइक मार्क्स का कोई मिस्टेक हुआ तो नेक्स्ट दिन आप वो पेपर घर पे एक दिन देख के आप जाएंगे, रिव्यू करा सकते हैं, फिर आपको यू विल हैव टू सबमिट द आंसर स्लिप्स. पेपर आया घर में, मम्मी ढूंढ रही कि ऐसे कहा है, ऐसे मिल ही नहीं रहा. मतलब फाइनली वो जाके वो एक लाइन होगा, मतलब यही लिखा तूने, हाँ यही लिखा. बट उस वक्त मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैंने 35 का पेपर अटेंड किया, मुझे 28 हो गया. तो मैं फोकस करी तो उसमें कि मम्मी आप ये देखो, आउटकम देखो. अब ये क्यों देख रहे हो कि मैंने 15 मार्क्स अटेंड नहीं किया, आप ये देखो कि 35 में 28 आया. फिर उस अगले दिन वो जो चेकिंग रिव्यू के लिए मेरा सर था, बंगाली टीचर था, मम्मी उनसे मिलने गई कि वो बता रहे कि मैं क्या बताऊँ दीदी, उसने तो लिखा ही नहीं है, मैं कैसे उसको मार्क्स दूँ. मम्मी बता रहे कि क्या करूँ जाने तो हो गया. बोले को एक चुल्लू पर रिग्रेट नहीं है उस बात की. इतनी मतलब मैं बहुत शरारती थी, बहुत. मैं ऑपोजिट, लाइक इसकी पोल ऑपोजिट थी स्कूल में. मतलब इफ शी वाज इन माय स्कूल आई नो इट फॉर अ फैक्ट आई वुड स्टे अवे. क्योंकि इसके किस्से ये खुद बताती है. आज शाम को भी आंटी मुझे इसके किस्से बता रही थी एंड आई वाज लाइक ब्रो, मैंने स्कूल में तो इसके कंपैरिजन में आई वाज नथिंग. अभी भी मैं बोलूंगी मतलब पूरा स्कूल मुझे जानता था. और मेरे स्कूल में शायद ही कोई मुझे जानता होगा. अभी तो मतलब ठीक है, मैं थोड़ी बदल सी गई हूँ. लाइक कोई अगर नया आके मनाली को नहीं भी पहचानता तो आई वुड मेक श्योर दैट ही वुड रिकॉग्नाइज मी विद इन अ मंथ. I have a way of मैं मनवाती नहीं छोड़ेंगे हम. making my impression on people. मेरा हुआ था एक बार बायोलॉजी के ट्यूशन में, वो 10th के लिए मेरा टीचर वो questions ask कर रहे थे and he said that describe about umbilical cord and I said describe about something about the question. It was like but there was something to mention umbilical cord and I couldn't remember that it is called umbilical cord. But I was thinking ma'am वो जो रस्सी है ना, रस्सी, and my ma'am was just shocked to say Manali, it's umbilical cord.
तो मैं वही yes that मेरे बायोलॉजी से एक याद आया कि हम लोग एक मैम के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे एंड देयर वाज दिस रियली बिग बैच, ठीक है, और मैं साइंस में डब्बा थी। आई थिंक फिर मुझे आज भी कोई क्वेश्चन पूछेगा साइंस में, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। तभी मतलब जैसे तैसे मैं पढ़ के पास हुई हूँ, बट ठीक है। तभी कुछ आई रिमेम्बर, आई थिंक एक सरप्राइज टेस्ट सॉर्ट ऑफ था और मैं बैठी थी सारे टॉपर्स के बीच में, ठीक है, मतलब ऐसे बैचेस में, ट्यूशन बैचेस में नीचे जैसे बैठते हैं, क्या क्या होता है, लंबा लंबा लाइन रहता है, मैम वहां पे बैठी है और उनके चारों तरफ स्टूडेंट्स है, वहां एक लाइन है, सामने कुछ लोग है, यहाँ कुछ लोग है, यहाँ कुछ लोग है। अब मैं बैठी हूँ जिस पोजीशन में, मैं लास्ट रो में बैठी हूँ, बट मेरे आगे आजू बाजू में जितने भी थे सारे ऑलमोस्ट टॉपर्स गैंग के लोग थे। अब कुछ क्वेश्चन आया था लाइक प्लांट का प्लाज्मा बोल के, एंड वो लोग आंसर्स में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कि प्लाज्मा 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 एंड आई वाज लाइक प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में होता है प्लाज्मा, एंड ओ नो दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग ब्लीडिंग या प्लाज्मा रिलेटेड समथिंग, व्हाटएवर इट वाज रिलेटेड टू ब्लड सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। और मेरे को लगा कि खून होएगा, मतलब ब्लीडिंग या प्लाज्मा ये सब इट वुड रिलेट टू लाइक ह्यूमन बॉडी या एनिमल किंगडम, एंड दे वर डिस्कसिंग आंसर्स, ठीक है। मैम 2 मिनट के लिए उठ के बाहर गई थी फॉर सम रीजन एंड एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग आंसर्स कि क्या होगा, एंड मैं वो क्वेश्चन का ना, मैं सोच रही पूरा एक तो क्वेश्चन पेपर दे दिया जिसमें मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं देख रही हूँ क्या है ये, मतलब क्यों है, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग एंड दैट गाय मेरे सामने एक बैठा था एंड ही टेल्स कि अरे एटा तो प्लांट प्लाज्मा হবে না, प्लांट ब्लीडिंग হবে ना, समथिंग लाइक दैट। आई लाइक है प्लांट ब्लीडिंग, ऐसा ही रिएक्शन होता था हमारा कि प्लांट ब्लीड करता है। मेरे घर में कौन सा प्लांट है? व्हाट डू यू मीन प्लांट? उस दिन मेरे को एक्चुअल में समझ आया कि मैं कितनी साइंस डफर हूँ, मतलब मुझे पता भी नहीं है कि ये है, मतलब ये चीज पॉसिबल है। मेरे कुछ मतलब लाइक स्ट्रेट डिसरेस्पेक्टफुल कुछ रिमार्क्स है जिन टीचर्स ने this is a very I had a very disrespecting maths का टीचर। उनको मैं मार्क्स बताने भी गई थी, I got 75 in maths and उनको मैं बताने भी गई थी and he was strict। अरे आपको पता है कि आपके इस बैच में कौन सा स्टूडेंट कितना ला सकता है, तो अगर मैं 75 मैंने लाई है तो वो मैंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके ही लाई है। आई हैड अ सर्टेन मार्क्स बाउंड्री, उसके ज्यादा मैंने कोशिश किया फिर जाके आई गॉट 75 एंड पीपल हु आर गुड एट मैथ्स दे मे फील दिस मार्क्स इज वेरी लेस बट फॉर मी इट्स सो मच। सो उस वक्त भी अरे आप एग्जाम हो गया, आप तो खुश हो जाओ यार, ये बच्चा आपके पास वापस आएगा भी नहीं, या हाँ ज्यादा अच्छा हो सकता था, मैं मन छोड़ो यार, मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ। मैथ्स में मेरे पास 75 आ गया, मैं तो नाच रही हूँ घर में। मेरे कुछ रियली ट्रॉमेटिक इंसिडेंसेस थे विद होम ट्यूटर्स। क्लास 6 में आई थिंक अब मैं किसी के पास पढ़ने जाती थी, इट वाज मी, भाश्वती एंड 1 or 2 अदर पीपल फ्रॉम स्कूल, एंड क्या होता था, the rest of the people compared to me were all good in studies and they were specifically good in science also including Bhashwati, and for some reason मुझे याद भी नहीं, probably half yearly, that was the first time I actually failed, ठीक है, in biology का पेपर था and I failed in that paper, ठीक है, out of 80 I think I'd gotten what 16 or something, but yeah I had failed in that biology का पेपर and मैं पढ़ती थी तब उनके पास, he used to take care of the entire science department and रिजल्ट्स आया, मार्क्स आए, अब मुझे पता था मेरा दिमाग हमेशा से ही साइंस डफर रहा है एंड आई हैड दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, मुझे मतलब चाहिए नहीं था कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाए, इतना था कि पास कर जाओ। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ड इन स्कूल। मैं उनके पास मार्क्स लेके गई, दैट सर ऐसे भी टाइप के, द रीजन आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेनी पीपल प्रोबेबली हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, ही सॉ माय मार्क्स एंड देन, छोटी थी ऑब्वियसली तब, पापा या मम्मी कोई ऑल्टरनेटिवली जाता था मुझे लाइक ड्रॉप करने या रिसीव करने फ्रॉम दैट ट्यूशन एंड बस तो ये टाइम पे ट्रॉमा था कि आ जाएंगे, आज कंप्लेंट जाएगी घर में। मेरा उतना ज्यादा कंप्लेंट उस तरफ से गया नहीं है, बट दैट पर्टिकुलर डे दैट मैन ही कॉल्ड बोथ माय पेरेंट्स, ठीक है, आई थिंक पापा सिर्फ आए थे या मम्मी सिर्फ आए थे, आई डोंट नो, द अदर पेरेंट वाज कॉल्ड एंड दोनों
पेरेंट्स को खड़ा करवा के मेरे सामने बोला गया कि इफ आई टीच दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स मेरी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। एंड আমার একটা मतलब मेरा एक स्टैंडर्ड है बच्चों को पढ़ाने का, एंड दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड दैट आई वांट टू मेंटेन कि बाकी के लोग जब आएंगे मेरे पास वो उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे पास बच्चा कोई पढ़ के फेल भी कर सकता है। एंड वो चीज मुझे बहुत हिट हुई थी। आई वाज इन 6 क्लास 6 बाय द वे, दैट्स अ वेरी यंग एज, एंड मुझे बहुत हिट हुआ था उस बार। एंड आई स्टिल हैव दैट मोमेंट वेरी विविडली इन माई हेड कि इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट मी, मेरे मम्मी पापा को बुला के डिसरेस्पेक्ट किया गया था एंड कुछ और भी चीजें बोली गई थी। एंड आई जस्ट डिड नॉट लाइक दैट कि आप, मैं आपसे पढ़ने आ रही हूँ तो आप मुझे डांटो, ठीक है, बट आप मेरे मम्मी पापा पे उंगली उठा के ये नहीं बोल सकते या फिर उनके अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा फेल कर रहा है दैट मीन्स हो सकता है फॉर मल्टीपल रीजंस, शायद वो पढ़ नहीं पाया, शायद उसका दिमाग उसमें नहीं बैठता है, शायद आप अच्छे से पढ़ा नहीं ये बात बहुत टीचर्स को मतलब एंड दे डोंट लाइक टू टेक इट, मतलब दैट वे उनको हमेशा रियलाइज नहीं होता था कि इफ अगर वो बच्चा फेल कर रहा है तो हाँ 50% वो बच्चे का भी फॉल्ट है एंड 50% यू फेल एज अ टीचर। ट्रू, you I would say the reason at least for me was that the reason I never ended up liking this whole साइंस या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इज बिकॉज मैंने पूरी स्कूलिंग लाइफ में मैंने वो पूरा सब्जेक्ट डर डर के पढ़ा है। एवरी पर्सन मेड मी फील स्टूपिड कि तुझे ये मतलब सबको समझ आ रहा है, तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन रिलेट, एवरीबडी कैन grasp that information. Why very like humiliating our teacher for like physics chemistry में पढ़ाता था and he used to always humiliate। and सिर्फ मैं नहीं थी, बाकी बहुत सारे बच्चे थे कि जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री में माइंड ऐसा नहीं था। ऐसा होता है कि सभी लोग थोड़ी ना चलते, लेकिन हाँ बाय गॉड्स ग्रेस मेरे अंदर वो हमेशा से मेंटालिटी थी कि तुम्हें बताना है बताओ, बिकॉज आई ऑल्सो हैड दैट ग्राउंड कि मेरा ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड सिविक्स बहुत अच्छा था। yes. तो इसलिए एंड दैट टीचर मार्क्स पैरिटी भी इसलिए दिखता था। तो आई ऑलवेज न्यू दैट आई नो व्हाट आई एम गुड एट, सो यू कैन टेल मी दैट। मैं अगर आप मतलब मैं आप बताती नहीं थी बिकॉज आई थिंक आजकल के बच्चे वो सब नहीं सोचते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने टीचर्स को। हम वैसे नहीं थे, लेकिन आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन मैं अपने आप में वो मन में बोल रहे कॉन्फिडेंट था एंड मन में मैं बोलती थी कि मैं अगर आपसे अभी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछूंगी आपसे नहीं होगा, वो आप नहीं बता सकेंगे। True, I mean there is a reason that they are specifically physics and chemistry के teacher and not of history or English। तो ऐसा हुआ था कि हिस्ट्री में कोई अगर मेरा मार्क्स अगर कट कर दे तो वो रिव्यू में अगर मैं वो बताने जाऊँ, ऐसा हुआ था कि वो टीचर बता रहे थे कि ऐसा नहीं होता, ये गलत है। I just questioned him, I just answered him कि नहीं यही होगा, आप बुक खोल के चेक कीजिए, because I had that confidence in my mind because I have written this, I have studied this and this is right। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा वो नहीं था and that's absolutely fine। yeah true, ये मुझे मतलब इसको ये रियलाइजेशन जैसे हिट हो गया था पूरे क्लास 10th तक मैंने एज आई सेड कि मैंने डर डर के पढ़ा है। पापा मुझे एक बार चाहते थे कि मैं आंखों का डॉक्टर बनूं, मैंने बोला कि किसी को अंधा थोड़ी ना करना है मुझे नहीं होगा मुझसे। मुझे पता था कि भाई मतलब अगर मैं 10th के बाद आई हैड डिसेंट एनफ मार्क्स टू टेक साइंस और कॉमर्स फॉर दैट मैटर, बट मैंने एंड 10th के बाद मुझे स्कूल चेंज करना था क्योंकि आवर स्कूल वाज नॉट एफिलिएटेड टू क्लास, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट रेडी, फैकल्टी वाज नॉट देयर, सो वी हैड टू मैंडेटरीली चेंज स्कूल। तो दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना था एंड दूसरे स्कूल का फॉर्म मैंने मम्मी पापा से मंगवाया था। मैंने सिर्फ मेंटल ये ब्लॉकेज से कि लोग क्या बोलेंगे सोसाइटी, और मेरे फैमिली में कोई आर्ट्स का बंदा है नहीं, ठीक है, जितने भी है सारे साइंस, मैक्सिमम साइंस, एक दो कॉमर्स के इधर उधर के है। तो आई एम इन दैट केस द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली somehow if you really look at it that way, and I had that thing in my mind कि you know मेरे फैमिली में जितने भी है सारे साइंस के बंदे हैं, और मुझे ये भी पता था कि मैं साइंस अगर ले भी लूंगी मैं ज्यादा दूर नहीं जा नहीं होगा, नहीं मुझसे नहीं होगा। And I think it's better to top in arts than to fail in science। Yeah, true। I mean, if you don't recognize what you're good at, for example, if I give you my example, if I had taken up science today, I would never be a college topper, never। मतलब डिपार्टमेंट ही टॉप नहीं कर पाती, कॉलेज टॉप तो बहुत दूर की बात है। I ended up rebel and my parents in this case touch would have been very supportive, they never questioned or told me कि तू ये ले ले या वो ले ले। My parents were like तू वो ले जो तुझे करना आता है, जो तू कर पाएगी।
and I had that liberty to choose anything that I wanted to. Not many people have it, and वो pressure धीरे धीरे ना after 10th ही cultivate हो जाता है, because you choose your stream on the basis of that, whether it's commerce, arts or science. तो it's okay. I've seen multiple people जो 10th के बाद 11th 12th के लिए they have taken up science, and then graduation में they end up taking English honors or history honors or something like that. तो calling late hit होती है, but whatever it is, I feel And like I know a realization. few toppers from my school were like so arrogant at that time. It was their era. They wanted to pursue few degrees, but when I checked years later, they couldn't crack that. And look at how time changed. I got what I wanted, It and I think doesn't I am matter so if happy. Yeah, मतलब जब contentment is ग्रेजुएशन के हमारे जो अभी ग्रेजुएशन का जो मेडल्स का वो हाँ. चीज हुई थी, when I came back home and gifted that medal to my mother, I all felt it like I did it. I did it, कर दी. 10th का जो रिजल्ट खराब हुआ था उसके बाद जो एक चीज बैठ गई थी दिमाग में कि इसके बाद तो लेना मुझे आर्ट्स ही है और करना मुझे वही है जो मैं चाहती हूँ. इट डजंट मैटर कि कौन मुझे क्या बताएगा. अगर कोई ज्यादा बताएगा तो उसकी बदनसीबी है कि वो मुझसे अब बात सुनेगा. तो आई न्यू दैट थिंग. एंड जब आई हैव टॉक्ड अबाउट इट पहले भी कि जब जर्नलिज्म ले रही थी तो ऐसे बहुत लोग थे जो जिनको जो फैमिली भी नहीं थे. फैमिली का तो मैं फिर भी सुन लूं. जो फैमिली भी नहीं थे आसपास के पड़ोस के, उनका बहुत ओपिनियन था, बहुत मुंह चल रहा था कि मतलब. एंड आई थिंक मम्मी ने स्टैंड ली थी उस वक्त. तो हर वक्त मेरे अंदर में वो बैठ गया था कि मम्मी ने आज अगर मेरे लिए वो स्टैंड ले रही है तो इसका तो प्रूफ तो करना है अभी लोगों को. वो तो अभी ये लोग आपको वो जो जॉब में जो भी करो इनका वो नहीं होता, क्योंकि इनका दिमाग तो हमेशा से वही चलता है ना कि मेडल्स, एकेडमिक मेडल्स एंड एकेडमिक हाइट्स एंड ऑल. तो उनको उसी तरफ से जवाब दो आप. जो भगवान जिस प्रसाद से, जिस फूल से प्रसाद से वो खुश हो वही यूज करो. My point is, don't even try to prove yourself to anybody else. मतलब it doesn't matter. People will keep barking at till a certain point of time, and ऐसे बहुत नोजी लोग होते हैं ना, जो जैसे मेरे टाइम पे हुआ था. मेरा जब 10th का और 12th का बोर्ड का मार्क्स आया था, कुछ ऐसे रिश्तेदारों ने मम्मी पापा को कॉल किया था जिनके साथ हमारा उतना ज्यादा बात भी नहीं होता है, एंड दे जस्ट स्पेसिफिकली कॉल्ड टू लाइक नो कि रिजल्ट कैसा गया है या कुछ. 10th के बाद I had hit a rough patch before my exams, मतलब main exams. Pre-selection में मेरा उतना अच्छा नहीं था, and I was mentally not in the right headspace. तो मैं बहुत डर के, but मैं मेहनत किया था मैंने 10th के पहले. तो I was satisfied with my marks. और वो मत सोचो कि अगर आपको एक बता दे कि 10th खराब हो गया तो सब खराब हो गया. ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं. 10th के बाद आपका लाइफ स्टार्ट है. Exactly. तो अगर 11th 12th आपने डिसाइड कर लिया, ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता. Mental clarity as you grow up is more important from within. जितने आप बड़े होगे उतना ज्यादा आसपास का एको चिंतन बढ़ता रहेगा. Lot of people will have a lot of opinions about you, about your career. A lot of people question कि why I want to be in the media field in the first place. A lot of people question me now कि मतलब what use is. For example, I am kind of low-key pivoting from media to business. So a lot of people come and tell me कि what use is your media degree? I'm like, तुझे क्यों बता. Exactly. Like, who are you exactly to question me on that one? अगर तू मुझे नौकरी देगी तो मैं बता सकती. But I can't go ahead and explain my whole plan to them कि मेरा plan ही यही था. I will pivot from media to a certain specific thing, and I wanted whatever. मेरा जो goal था throughout the 3 years of college, I have achieved it. I have done it, and I am very proud of myself on that ground. कि मैंने किसी के आसपास की बात नहीं सुनी, मैंने किसी का unnecessary unsolicited opinion absorb करके खुद को मतलब self deprecate नहीं किया है, और मुझे इतना confidence था खुद में कि इस बार the comeback is personal and I have to do it for myself. ये बैठ गया था. I have to do it for myself. 10th को मुझे एक हिट हुआ 10th के बाद, एंड आई वाज लाइक ब्रो 10th में मैं एकेडमिकली जिस तरह लो गई हूँ, मुझे वो फेज एटलीस्ट एकेडमिकली नहीं देखना है. एंड आई पुल्ड दैट अप. 10th के बाद 11th 12th में आई वाज वन ऑफ द क्लास टॉपर्स. उसके बाद से कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में आई वाज आल्सो in the top 5 top 10, but second semester में जब मेरा first rank आ गया, I was like bro, this is it. This is the standard. This is what I have made. I don't care whoever is competing with me, against me, or in this competition. I don't care. मुझे बस इतना पता है कि I have
cracked a position and I will do anything to keep up with it. मेरा कंपटीशन आसपास का कोई बंदा नहीं है, And I मेरा think कंपटीशन अगर मैं आप- खुद हूँ. अगर आप उस लाइक माइंडसेट से आप उतरोगे कि मुझे फर्स्ट बनना ही है, उसके बाद अगर आपका रिजल्ट उस तरफ से आपको पूरा मेहनत करना है, अगर उसके बाद आप सेकंड थर्ड आ जाओ ना, फिर वो वो अलग रिग्रेट नहीं होगा हाँ, आपको, कि क्योंकि आपने आप जान एफर्ट दिया है. एफर्ट्स दिया है आपने. लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो वो रिग्रेट हमेशा रह जाएगा कि काश मैं पढ़ लेती. एंड आई थिंक वो बैलेंस आपके ऊपर है कि आप अगर हम लोगों ने कॉलेज में बहुत मस्तियां की है, Yeah. बहुत. इट्स वी वोंट से दैट कि हम वो नर्ड्स थे, मैं तो थी दिन ही रात मतलब वो हमने फेस्ट वगैरह सब कुछ किया है. लेकिन वी हैड दैट वन थिंग कि अगर सबका अलग अलग रहता था. लाइक कोई था हमारे ग्रुप में जिसको सिर्फ 15 दिन चाहिए, वो कवर कर लेगी. इसको 6 सेमेस्टर में ये लास्ट मोमेंट में हर टॉपिक पे पढ़ के गए, इसे ड्रॉप कर ली. मेरे ग्रैस्पिंग पावर लोगों की हाँ, अलग होती है. मुझे पता है कि मुझे 1 महीना चाहिए टू कवर अप ऑल थिंग्स. आई शुड टेक दैट 1 मंथ. वो आपके ऊपर है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करो. लेकिन अभी बोर्ड्स का सीजन चल रहा है. नाउ इट्स टू लेट टू से दैट अभी पढ़ लो. पढ़ना थोड़ा पहले करना चाहिए था. लेकिन हाँ, बट अभी भी जो सब्जेक्ट्स है पढ़ लो. मैंने खुद फिजिक्स एग्जाम के पहले मैं मूवी देख रही थी, तो नहीं रिग्रेट नहीं है. मुझे फिजिक्स से ज्यादा कुछ होप भी नहीं था. मुझे भी. मैं एक दिन में क्या ही पढ़ लेती फिजिक्स में, थोड़ी ना टॉप कर जाती फिजिक्स में. मैं तो फिजिक्स एग्जाम दे के आके मैं देख रही थी एक सब्जेक्ट में अगर फेल कर जाए नहीं, फेलिंग का तो 10th 12th क्या? में नहीं. फिजिक्स एग्जाम का पेपर जो हार्ड हुआ था, मुझे वो पता नहीं चल रहा था. मैं फिजिक्स में इतना डफर थी, वो तो मुझे आसपास के मनहूसों से पता चला. नहीं, मुझे साइंस का कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा मजा आता है क्योंकि आई हैव टू ब्रदर्स हु आर इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस. तो conversationally it's interesting to hear about know about science, but I don't think so as a person I would have excelled in science academically. It's just not. And I think I am someone from my family from both the sides. मैं ऐसी क्यों हूँ मुझे नहीं पता. लाइक बट मुझे एक चीज हो जाती है, मुझे पता चल जाती है कि अगर ये मुझसे जल रही है मैं उसको और जलाऊं. और जल ये अगर सोच रही है कि मैं टॉप कर गई तो इसको जल अगले मजा साल और ज्यादा परसेंटेज लाओ. मजा आता है लोगों को जलता हुआ देख मम्मी के. पूरा ऑपोजिट है मेरे से. मम्मी बता रही कि क्या जरूरत है. मतलब जरूरत तो है. बड़े शांतिवादी लोग हैं हमारे घर वाले. शांत से तो मैं रह नहीं सकती. मेरे कुछ ना कुछ तो मेरे करना पापा पड़ेगा. 12th के बाद खुद ही इज कॉलिंग पीपल. मेरी मासियों को फोन किया है, सबको हाँ, फोन किया है, कॉलेज के कॉल करके सबको परसेंटेज बोल रहे हैं. अब इस मोमेंट में आके मैं बता रही कि मम्मी सबको पता नहीं कि क्या Exactly. नहीं मुझे खुशी हो रही है, मुझे पता नहीं दे. और कॉल करके मेरे को फोन पकड़ा दे, ले बात कर. मैं कौन है, मतलब परसेंटेज बताओ, मार्क्स आया. मतलब मुझे नहीं करनी है किसी से बात. मेरा 12th में 97% आया था बाय द वे. कुछ होता है अभी. मुझे स्टिल मर्जी नहीं था कि क्या है, किसको प्रूव करना है, मुझे क्या ही किसको अरे बोलना है. मम्मी का भी क्या चल गया मुझे पता नहीं. अभी कंटेंट क्रिएशन में अगर कुछ मिलेगा तो सबको दिखाने लग जाए कि इसको ये मिला है. ये I think that is very cute of our parents. मम्मी रहने दो. They like flexing on their whatever children have achieved, and I think that's a very cute trait to have. All of our parents do, and as children, I feel like it's very fulfilling to watch when your And I think parents अगर do that हम for you. उनको ये खुशी दे सकते हैं तो that's Yeah. really something very I nice. feel like that is a happiness on their face that your hard work has earned. So you deserve the flexing or gloating from your parents, and if your parents do it, that means they are simply very proud of Proud you. of. So yeah, it's a very fulfilling feeling. I think टाइम बहुत कम है हमारे, लेकिन True. लास्ट में एक ही चीज हम बता सकते हैं कि स्टडी हार्ड एंड 10th के बाद थोड़ा मजा तो है. घर में जो बताया था कि 10th के बाद मजे में से थोड़ा मजा तो है, वो 10th में उतना ही है. Depends on your parameters of having fun, by the way. अगर 10th के बाद अचानक से उड़ने लग जाओगे तो गिर जाओ. ऐसे कटेंगे पंख. धीरे-धीरे और होगा. जो बोलते हैं academics is not important. दोस्त ध्यान से चूज करो. दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के लिए. लाइक आई थिंक अच्छे करियर के पीछे एक मेन जो रीजन होता है दैट इज दोस्ती. अगर आपका दोस्त का वो सर्कल अच्छा नहीं होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली इफेक्ट यू. वो सही कहते हैं कि अगर आप गंदे मछलियों के बीच में आप रहोगे पानी में तो ज्यादा देर तक आप वो सही वाला नहीं रह पाओगे. या स्टडी हार्ड एंड आगे का जो आप लोगों का जो वो जर्नी है, वो जो लंबा जर्नी है, अगर 10th में बुरा भी होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा होगा, फेल नहीं करोगे, बुरा होगा, तो वो माइंड में बिठा लेना कि अब जर्नी माय एरा विल स्टार्ट. Villain arc era start. Yeah.
आई थिंक मैं 2 चीजें बोलूंगी. पहली चीज वो है कि have faith in yourself, be confident about your abilities and have clarity on what you want to do. Don't take up something under peer pressure or under the fact that somebody else wants you to pursue it. Don't do that. Short term के लिए शायद उनके चेहरे पे अगर खुशी आ भी जाए, long term के लिए तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं रहेगी. तो मेक श्योर फ्यूचर तुम्हारा है. जो भी डिसीजन तुम लेते हो वो तुम्हारे बारे में सोच के लेते हो. थोड़ा लड़ना पड़ेगा तो लड़ लो. हाँ, अभी टाइम है, अभी लड़ लो. बाद में जाके अगर वो जो करियर में जो फुल स्टॉप आ जाएगा ना, तब आई थिंक गलत नहीं है, लेकिन तब जाके वही लोग बताएंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले बता सकते थे. तो अभी टाइम है, अगर लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन जो तुम्हें चाहिए वही चूज करो. हैव फेथ इन योरसेल्फ. अगर एज शी सेड दैट अगर अच्छा बाय चांस नहीं भी हुआ, be kind to yourself and be patient with whatever is awaiting for you in the future. It's just a bad day. Trust me, I've been there, done that. All of us at some point. मैं आज भी अपनी 10th की परसेंटेज काउंट करती हूँ कि काश थोड़ा बढ़ जाए. नहीं. And 10th is just the starting point of your career. It does not decide where you will be headed 10 years down the lane. And second thing that I would want to say is that always, if possible, always try to surround yourself with people who are smarter than you. Because people who are above you by even 1% will never pull you down. These are the people who will push you to go up. Don't surround yourself with people who are beneath you. These are the people who will pull you down. They are jealous of you. They are insecure of you. They will want you to come to their level. They don't want you to excel. And be very cautious about the kind of people that you are with, because यहाँ से रियल लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है. लॉट ऑफ पीपल विल चेंज स्कूल आफ्टर 10th 12th. कॉलेज में जाओगे, इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड. नॉट एवरीबडी दैट यू मीट विल बी योर फ्रेंड. नॉट एवरीबडी विल बी हैप्पी और cheerful about your success. So make sure whenever a good thing happens in your life and whenever a bad thing happens in your life, it could be anything, personal, professional, academic, watch out who is clapping for you and how genuine those claps are. This is what will help you go or move forward in life. And आज मार्क्स तुम्हारा जैसा भी आए, अच्छा हो बुरा हो, अप टू द मार्क हो, beneath the mark हो, और अच्छा हो सकता था, ये माइंडसेट भी अगर आए, just be patient and have faith कि अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो आगे मुझे अच्छा करना है. This is the moving up point of your life. इससे backwards नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना है. तो अगर ये तुम्हारा स्टैंडर्ड अभी के लिए है, कोशिश करो यहाँ जाओगे in the long term, but for now just take a step that is like here and then here and then here. It's a gradual process. You can't reach overnight. तो वो mental and detach yourself from all the materialistic things. Detach yourself from कितने marks आए या कितना CGPA आए. Learn something because you want to learn, and learn something because it is interesting to know a lot of things and be around smart people. You will be one of them in the long run. So I think that is a lot of information from my end, and all the best to all the people who are appearing for exams, all the people who tried all of your bests, and we really hope you scored really, really good. All the best, guys. And I think we'll wrap up here. Yeah. We will see you guys in the next one. Please give your best and be confident in your abilities, and don't forget to like, comment, share, and subscribe to the Scoop Sisters. And we will see you guys in the next one. Bye.